हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव के या कह सकते हैं द रियल हेड और द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। एंड उससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आई टोल्ड यू दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द थर्ड ऑर्गन and not the only organ, the last one, या कह सकते हैं not the only last organ of the executive. It is something else also that is last, वो हम आगे cover करेंगे. But as of now, what you need to understand is the Council of Ministers, right? Now this Council of Ministers, I told you, works under the Prime Minister, and the Prime Minister works under the President, right? The real work is done by the President, the Prime Minister and the Council of Ministers. Clear? And the President, whatever work he does on the advice of the Council of Ministers. Clear? यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब the Council of Ministers की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। A, they are the most important people because the Prime Minister cannot alone single-handedly handle the entire country and can be a part of the executive. क्लियर? चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्यों ना हो, nobody in anywhere around can single-handedly work, right, and manage everything. In fact, अगर आप पूरे पुराने टाइम में भी देखोगे तो जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, the kings, they were there, and during the Britishers also, they had certain people around them who did the actual work, or you can say the work. Clear? Actual work तो प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, but the work. एंड क्योंकि इतनी डाइवर्स कंट्री में, स्पेशली लाइक इंडिया, it is very important that we have a better and a very good council of ministers. Clear? Now, who are these and how are they elected? They are chosen by the prime minister. हम सिर्फ वोट दे करके मिनिस्टर्स को, या कह सकते हैं लोगों को, पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड राज्यसभा हो। बस द प्राइम मिनिस्टर, because he is the head of the party, he is the head of the majority party, जिसको ज़्यादा votes मिलते हैं, it is the prime minister who decides कि कौन members उस पार्टी में से, जितने भी seniority basis पे, कि कौन कौन लोग हैं जो मेंबर बनने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनने या मिनिस्टर बनने के लायक हैं, they deserve it and are capable of, ठीक है, वो उनको चूज करते हैं, and accordingly their rank and portfolio is decided, ठीक है। At the same time, this is something that is followed at the state level also. यही चीज़ state level पे भी follow होती है. It is the here. यहाँ पे state level पे the chief minister decides कि कौन ministers रहेंगे, right? So the state, at the same time, the chief minister chooses the ministers from their own party or coalition, and वही चीज़ जो minister है, the prime minister है, the ministers, the council of ministers, they are all पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये होना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही वैल्यूड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो स्टेट के लोग हों, दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दे हैव टू बी पार्ट ऑफ देयर विधानसभा, बट यहाँ स्टेट, अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, सो दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज दे हैव responsible and accountable to the legislature. Clear? Next up, we come to the last organ of the bureaucracy, or you can say the executive, is the permanent executive. Okay. Council of Ministers वो लोग हैं जिनको हम choose करते हैं. Clear? At the same time, permanent executive are the people who work under the ministers. ठीक है? And to be honest, they do the actual work. एक ऑनेस्टी से अगर बात करें तो ये सही मायनों में असल काम करते हैं। क्लियर? These are called the permanent executive or the bureaucracy. क्यों? क्योंकि these are the people, वो कभी भी एक बार once chosen, they will not be removed from their office. हाँ, apart from any other cases अगर against them, अगर कोई corruption charges लग गए हैं या और कोई charges लग गए हैं, then in that case they can be removed. बट अदरवाइज, अगर आप मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के केस में देखो, दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आज पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई हुई है, तो वो मिनिस्टर हैं,
एंड वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो पार्टी नहीं आएगी 5 साल बाद, और ज़रूरी नहीं है कि वो आए भी, तो अगर वो पार्टी नहीं आएगी 5 साल बाद तो हम उसको दोबारा से, तो वो मिनिस्टर्स आएंगे नहीं वापस। सो बट एट द सेम टाइम ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर काम करती है, दीज आर द परमानेंट वंस, जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं। आई नो आप में से काफ़ी लोग हैं जो इस सपने के साथ बैठे होंगे आज भी, बिकॉज एंड इट्स गुड, बिकॉज आप 11th में और अब नहीं डिसाइड करेंगे तो कब करेंगे कि आगे आके हमें क्या करना है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे IAS IPS ऑफिसर्स सोचा होगा बनने की, और ये जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स आप बनना चाहते हो, दीज आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है एंड अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है कंट्री का, वो क्या क्या इंक्लूड करता है? द PM, अंडर हिम वर्क्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अंडर देम वर्क्स द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जैसे मैं आपको इस चीज़ को एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गो टू योर स्कूल। अब स्कूल के लेवल में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज एवरीवेयर, राइट। अब अगर हम उसका एग्जाम्पल एक स्कूल के एस्पेक्ट से समझते हैं, तो जो स्कूल है, स्कूल में आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, दैट इंक्लूड्स योर प्रिंसिपल, दैट इंक्लूड्स योर डायरेक्टर, द ट्रस्टी, द अदर मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। उसके नीचे आर द पीपल हु डज द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज, जो बनाते हैं, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो उस एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, सुपरवाइज कराते हैं। एट द सेम टाइम यही अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करो, ठीक है, तो वो क्या है? अगर हम स्कूल के एस्पेक्ट से समझते हैं, तो स्कूल के एस्पेक्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज दिस पीपल हु हेल्प यू इन submitting your fee, who help you in giving you iCards or the proper or the required material that you want, चाहे वो यूनिफॉर्म खरीदना हो, चाहे वो बुक्स खरीदने हो, all that is your administrative machinery। अगर आप फीस की बात करते हैं तो आप अपनी फीस को डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल मैम के हैंड में देने नहीं जाते हो, यू सबमिट इन अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। इन द सेम केस लाइकवाइज the council of ministers भी ऐसे कोई इंसान ही है वो भी, राइट। सो दे कैन नॉट जस्ट एक उंगली घुमा करके कोई मैजिक होगा एंड सारा काम हो जाएगा, इट्स नॉट दैट, राइट। अंडर देम यू हैव अ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, these are called the civil servants, and these civil servants are the people who are very skilled, very trained, permanent employees, ठीक है। एंड यही लोग हैं जो एक्चुअल वर्क करते हैं, लेआउट बनाते हैं। आज मैं अगर एक मिनिस्टर हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे को एक रोड कंस्ट्रक्ट करानी है या मुझे कोई एक डैम बनवाना है, ठीक है, तो ये लोग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अंडर मी, दे विल वर्क आउट द एक्चुअल थिंग्स। वो पूरी एक्चुअल चीज़ों को दे विल वर्क आउट कि कहाँ पे कितना पैसा लगेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कितने लोगों को क्या कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको बेनिफिट होगा, किसको नहीं बेनिफिट होगा, इतना नुकसान हो सकता है। सो इट इज़ दिस फॉर्मुलेशन वर्क दैट दे डू, एंड फाइनली विद द proper plan and formulation of the policy they come up to me, मेरे पास आते हैं, and then I agree or it is up to me कि मैं agree करती हूँ या नहीं उस चीज़ पे। and again this will depend on what the situation is, what the demand is, क्या है पॉलिसी लेकर आए हैं वो, क्या वो सही है नहीं है, it will all depend on that। so these are the people who assist and does the actual work to formulate the policies। clear? Now the legislature controls the management, administration, and यही सिविल सर्विस के ऑफिसर्स जो हैं they have to be neutral। ऐसा नहीं है कि ये किसी परमानेंट पॉलिटिकल, बिकॉज दे वर्क अंडर द पीपल हु आर फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करते हुए ये लोग नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट इज़ दीज पीपल ओनली जो एक्चुअल वर्क करते हैं। सो दिस इज़ वॉट योर परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज़। नाउ अगर ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव आता है, एंड प्राइमरीली द डिफरेंस विल कम बिटवीन परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। द परमानेंट आर द ब्यूरोक्रेसी, द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एट द सेम टाइम द पॉलिटिकल इंक्लूड्स योर मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, जो 5 साल बाद आए ना आए nobody knows, but these are the people जो हमेशा रहेंगे, right? So this is what your executive is all about, and hence this was all the union executive that we have studied। हमने state level के executive नहीं समझा है because it's not a part of your chapter also, but वो चीज़ same है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि सेम है, जो नेशनल लेवल पे अडॉप्टेड है सारी चीज़ें वही आपके स्टेट लेवल पे भी अडॉप्टेड है, सो देर इज़ नो डिफरेंस।
क्लियर? तो ऐसी ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपके स्टेट लेवल पर भी है. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर एग्जीक्यूटिव इज. ओके, आई होप यहाँ तक ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. वील बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द 5th चैप्टर फॉर you all, that is legislature, in a short time. And for all the class 12 students, I'll be coming up with 3rd chapter of your book, 2nd book, very soon. I hope आप लोगों को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम ना हो. If so, please mention it to me in the comment section, and I'll definitely take that up. I would request everyone to firstly go through all the videos. Okay, जो आज भी join कर रहे हैं. So go through all the videos. I have mentioned all the links in the description box. So please go through all those videos first. And still, if you find anything missing and you want to discuss or confusion, mention it to me in the comment section. I hope you find this video useful. If so, please hit the like button and subscribe to the channel, everyone. Thank you so much.